Hello everyone, welcome to Easy Connect. My name is Samir Sultanov and I will be doing the questions of linear equation under the chapter of algebra in the series of top 100 cat point questions, the most expected questions. So I'll be discussing four excellent questions of linear equation in this whole video. So it's a question number one and question number 32 of our whole series. Look at the question, guys. It says the question paper contains 200 questions. For every correct answer, 4 marks are awarded. For every wrong answer, 2 marks are deducted. And for every unattempted question, 1 mark is deducted. A candidate attempts the paper and he gets 90 marks. The number of ways in which he could have got those marks is what? सो गाइस टोटल पेपर के अंदर 200 क्वेश्चंस हैं और उसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं करेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चंस कुछ आपके कुछ देयर विल बी सम रॉन्ग क्वेश्चन एंड देयर विल बी सम क्वेश्चन दैट यू विल बी लीविंग अनअटेम्प्टेड जो आप नहीं करने वाले तो करेक्ट आंसर के आपको 4 मार्क्स अवार्ड होंगे and for wrong answer you will be deducted to 2 marks and for every unattempted question you will be having minus 1 marks, right? So guys, so you need to make basic two equations, the correct questions plus wrong questions plus unattempted question will be equal to 200. And then for every correct answer, 4 positive marks. For every wrong answer, negative 2 marks. And for every unattempted question, negative 1 mark. This total value is equal to 9. Now, see that? If I add these two equations, these two values will get cancelled. I have an equation 5 times of C minus W is equal to 2. And see that again, this is an increasing line. Increasing line means those lines जिनका slope positive होता है. Increasing line कौन से होते हैं जिनका slope positive होता है. जो first quadrant और third quadrant से पास. Why I will call this an increasing line? Because x के बढ़ने से y का value increase हो रहा है, right? और x के कम होने से y का value decrease हो रहा है. That's why this line is increasing line and increasing line always passes through the first and the third quadrant, right? Because यहाँ पे आपका slope positive है, tangent of theta in the first quadrant is positive, so the slope is positive. Tangent of theta of any line is basically called as the slope of the line. It comes under the basics of linear. Now in this question, guys, देखो. Now why I'm saying that this line is an increasing line? Because if I write down C as x, let's say, and W as y, let's say, it's equal to 2, then you can see that the final format of the equation would be y is equal to 5x minus 2. Now if I compare it with y is equal to mx plus c, then you can see that slope of the line is m and that is 5, which is positive. A positive slope means line will be an increasing line. So now let's look at this equation. So basically, I just need to find out the integral solution of this linear equation to find out the number of ways in which he could have scored 90 marks. So x और y के जितने different combination इस linear equations को satisfy करेंगे integral combination, right? Because it's an increasing line, there will be infinite number of points that will lie on this line. But उसमें से जो integral points होंगे जिसमें 5c minus w का difference 290 होना चाहिए and secondly आपके करेक्ट क्वेश्चंस प्लस रॉन्ग आंसर्स जो है वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते बिकॉज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 200. So I just need to find out the integral solution of this linear equation with the condition in the mind that कि c और w का वैल्यू 200 से कम होना चाहिए. So those values of x and y जिसका summation 200 से कम होगा और इस इक्वेशन को जो satisfy करेंगे that will give me the number of ways of finding the of having a 90 marks in this with these conditions, right? So my job now is to find out the integral solution of these linear equations. Let's do that. Let's do this. How to find out the integral solution of 5c minus w. Let's do it over. So let's look at this equation. 5x minus, just for a better understanding and familiarity with the variables, I'm taking it as 5x minus y is equal to 290. तो जो इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने उसके लिए सबसे पहले आपको स्लोप चाहिए. स्लोप मींस चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइट? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. चेंज इन y अपॉन चेंज इन x किस पे डिपेंड करता है? y का चेंज इन y डिपेंड्स ऑन द चेंज इन x, कोएफिशिएंट ऑफ x. तो सॉरी, चेंज इन y जो होगा वो x के कोएफिशिएंट पे x का कोएफिशिएंट फाइंड होगा. चेंज इन x डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ y व्हिच इज 1. सो इस केस में आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा, लाइन इंक्रीजिंग है, and which is del y upon del x is equal to
5 by 1. Now first find out any integral solution. आप कोई भी एक integral solution find out जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. You can just have to find out the first solution with hit and trial method. तो पहला हम देख सकते हैं कि 290 is a multiple of 5. तो can I straight away take x as 58? अगर क्या मैं x को 58 ले सकता हूँ because 290 by 5 is 58 और y का वैल्यू in that case would be 0. So अगर कोई पर्सन इस पेपर में 58 करेक्ट क्वेश्चंस कर दे और बाकी सारे कोई गलत कोई भी नहीं करे बाकी सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दे, then this person will be getting a total of 90 marks. You can cross check it. कि अगर 58 करेक्ट क्वेश्चंस हैं, लेट्स से 58 करेक्ट क्वेश्चंस की वजह से उस बच्चे को मार्क्स मिलेंगे 232 और टोटल 200 क्वेश्चंस है तो रॉन्ग जो क्वेश्चंस होंगे दैट वुड बी 200 minus 58, इट विल बी 142. सो ये 142 नेगेटिव मार्किंग में जब जाएगा, राइट, 142, देन यू कैन सी दैट डिफरेंस विल बी 90. तो उस बच्चे को 90 मार्क्स मिलेंगे. तो अभी आपको बस ये सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंट पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशन, राइट. नाउ आई नो दैट कि नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू को फर्दर अगर या फिर चेंज इन y इज 5, अगर मैं इसको 5 से इंक्रीज कर तो ये 1 से इंक्रीज होगा बिकॉज चेंज इन x इज 1. मतलब आपने 59 करेक्ट क्वेश्चंस किए, 5 गलत क्वेश्चंस किए, राइट. तो इस केस में आप सामने अपने रॉन्ग क्वेश्चंस भी लिख सकते हो. 58 करेक्ट किए, सो ये आपके रॉन्ग है, यहाँ पे आप अनअटेम्प्टेड लिख सकते हो. तो 200 में से 52 जो माइनस होगा, देन यू विल सी दैट 200 minus 52 is 140. तो आपको टोटल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस 59 आपने करेक्ट किए, अभी 5 क्वेश्चंस आपके गलत हुए, टोटल हुए 64. 200 में से टोटल 200 में से 64 माइनस किया, देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 136. तो यहाँ पे आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे. देन 60 here, तो चेंज इन x वुड बी 1. एज यू कैन सी x की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगी, y की वैल्यू 5 से इंक्रीज करेगी. 70 और ये वाला वैल्यू डिक्रीज करेगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का, बिकॉज आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ज्यादा गलत कर रहे हो, तो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कम होते जाएंगे. इस डिफरेंस से कम होंगे, आप यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, 6 की वैल्यू से कम हो जाता है. ये 142 था, ये 136, तो यहाँ पे 130 आना चाहिए. और यहाँ से भी आप वेरी कर सकते हो कि 60 करेक्ट है, 10 गलत, तो बाकी 130 unattempted questions. Now you just need to look at this series to get your answer. You see that कि ये जो टाइप ऑफ नंबर्स है, look at these type of numbers, ये 6 से डिक्रीज हो रहा है, राइट. ये लोवेस्ट कितना हो सकता है? If this keeps on decreasing, you can see that ये नेगेटिव नहीं हो सकता. दिस वैल्यू क्या है? नेगेटिव, राइट. ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन नेगेटिव तो नहीं हो सकता. So what you need to do is, we know that this is getting changed by x. ये x से decrease होता है, right? Next solution में ये 124 आ जाएगा. This will keep on decreasing by 6. So what I need to do is observe the type of the question. Observe the type of the numbers here. 142 as a number you can see is, अगर आपको इसको 6 की फॉर्मेट में लिखना है, ये नंबर जो है 142, right? I'm writing down over here. As 142 जो नंबर है बच्चों, राइट, वो 6 टाइम्स हो, 6 टाइम्स 6 से डिवाइड करने पे 2 का रिमाइंडर देगा. 6 into 6 into 2 12, 2 6 into 3 18 plus 4. So yes, these are the numbers जो कि ये जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के जो टाइप्स है, ये 6 के गैप में, और 6 से डिवाइड करने पे ये 4 का रिमाइंडर दे रहा है. दैट मींस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की जो मेरी सीरीज बन रही है वो 6k plus 4 की है. And the first value that I can put over here is 142 जो नंबर आ रहा है, उसमें आपकी k की वैल्यू जो है वो 23 है. Okay, what will be the last value? सबसे 0 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होके 4 का रिमाइंडर देता है? That number is 4, right? Right. This is also 6 into 0 plus. तो 6 into k plus 4 की सीरीज में आप 142 से लेके 4 तक जा सकते हो. 4 के बाद नंबर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, राइट. तो नेगेटिव आपको लेना नहीं. सो दिस वुड बी 6 into 0 plus 4. सो बेसिकली आप k की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 0 से 23 तक वेरी कर सकते हैं. एंड दीज विल बी द नंबर ऑफ वेज ऑफ फाइंड हैविंग अ 90 मार्क्स, राइट. बिकॉज ये उन्हीं सीरीज के सॉल्यूशन है जिसमें आपको 90 मार्क्स है. ये सारे वही कॉम्बिनेशंस है जिसमें बच्चे को 90 मार्क्स है. सो 6k plus 4 की सीरीज में सबसे बड़ा नंबर 142 है जिसमें k 23 है, सबसे छोटा नंबर 4 है जिसमें k 0 है.
सो 0 से 23, रोल नंबर 0 से रोल नंबर 23, टोटल कितने नंबर बचे? 20. So there are total 24 possible combination of getting the 90 marks. A very important and excellent question of a linear equation integral solution, or linear equation of integral solution is a favorite of CAT. आपको बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के राइट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कैट पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन right of finding the integral solution of a linear equation, theoretical based, concept based question. Next we have question number 33 guys of the whole series, second question of linear equation. For how many positive integral values of b less than 50 does the equation 5x minus by is equal to 30 have integral solution? So let's, अभी आपके पास कोई इक्वेशन है 5x minus by is equal to 30, right? So you see that 5x minus by is equal to 13 के इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है. तो b की कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल व्हिच आर लेस देन 50. सो बेसिकली वेल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b व्हिच आर लेस देन 50, राइट, लेस देन 50 हमें बताना है, राइट, जिसमें पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b लेस देन 50 डज द इक्वेशन हैव, सो दैट 5x b is equal to 13 हैव इंटीग्रल सॉल्यूशन. इसके इस लीनियर इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन होने चाहिए. You can see that कि ये जो लाइन बनेगी this would be an increasing line. ये आपको पता होना चाहिए. ax minus by is equal to 13 अगर मैं आपको बोल रहा हूँ. You see that कि ये दो नंबर्स का गैप 13 है. So अगर मैं a को इंक्रीज करूंगा तो ये गैप को 13 पे मेंटेन करने के लिए आपको b को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. इट्स लाइक कि आपका 13 रुपीज आपको सेविंग करनी है, ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, राइट. आपको सेविंग 13 पे कांस्टेंट रखना है बिकॉज दिस इज माय कांस्टेंट वैल्यू. अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा सो दैट की सेविंग आपकी 13 रुपीज की है. सो एक्स के कोफिशिएंट के बढ़ने से वाई का कोफिशिएंट भी बढ़ रहा है, तो ऐसी लाइन को इंक्रीजिंग लाइन बोलते हैं. या फिर आप स्लोप निकाल के भी फाइंड आउट कर सकते हो जो मैंने आपको अभी पहले बताया, राइट. सो ax minus by is equal to 13, ax minus by is equal to c का कोई भी लाइन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और ax plus by इज इक्वल टू सी का कोई भी जो लाइन होगा दैट वुड बी अ डिक्रीजिंग लाइन. ये हमेशा आपका डिक्रीजिंग लाइन होगा और ये आपका हमेशा इंक्रीजिंग लाइन होगा, राइट. अब ये क्वेश्चन के अंदर 5x minus by is equal to 13 हमें बताना है कि कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल है. पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मेरे को इस इक्वेशन से निकालना है, राइट. ठीक है. Now we know that कि अगर यहाँ x की वैल्यू b की वैल्यू में एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए that if I put the coefficient of y in such a way that's a number which is a multiple of 5, let's say कि मैंने यहाँ पे 10 डाल. Now this equation will not have any integral solution. इसके solutions बहुत सारे होंगे but integral solution इसका possible नहीं है. The reason being that when I take 5 common तो x minus 2y is equal to 13 upon 5 बनेगा. अभी राइट हैंड साइड में आपको फ्रैक्शन मिल रहा है. You have a fraction on the right hand side. अभी राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन है और यहाँ पे आप x को इंटीजर डालो, y को भी इंटीजर. नाउ इंटीजर माइनस इंटीजर कैन नॉट गिव यू फ्रैक्शन. सो देयरफॉर यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि अगर y का कोफिशिएंट b x के कोफिशिएंट 5 का कोई भी मल्टीपल होगा या फिर उससे नॉन कोप्राइम नंबर होगा तो इस इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं. इस इक्वेशन में इंटीग्रल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है, राइट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज b इज कोप्राइम विद द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5. जब ये दोनों नंबर्स आपस में कोप्राइम होंगे तभी आपको इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा. अदरवाइज यू विल नॉट गेट एन इंटीग्रल सॉल्यूशन. द रीजन आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू ओवर हियर. तो 50 से नीचे कितने ऐसे आई वांट कि इसके ऐसे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज निकालो जिसके लिए इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन. तो इंटीग्रल सॉल्यूशन मुझे निकालना है लेस देन 50 टोटल नंबर लेस देन 50 कितने पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 है. नंबर लेस देन 50 व्हिच आर द पॉजिटिव इंटीजर्स आर 49. अब ये 49 इंटीग्रल सॉल्यूशन में वो नंबर जो 5 के साथ कोप्राइम नहीं होंगे, those numbers will be the multiple of 5 because 5 is a prime number. आप ये देखो कि 1 से लेके 49 के बीच में 5 के कितने मल्टीपल्स हैं. 5 के मल्टीपल्स आर 5, right? 5 के मल्टीपल्स आर 5 into 1, 5 into 2 and the last would be 5 into 9. So total मेरे पास
9 मल्टीपल्स। सो अगर मैं b की वैल्यू को इनमें से कोई भी नंबर लेता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये 9 में से कोई भी वैल्यू रखूंगा तो इसका मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो 49 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज में से 9 ऐसी वैल्यूज हैं जो इसके साथ कोप्राइम नहीं है। तो कोप्राइम नहीं होगी तो उसकी वजह से आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऐसी b की वैल्यू जिसके लिए आपको इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा that will be equal to 40, and that's the correct answer to the question. 40 would be the correct answer. This is the 40 important question and बहुत कम बच्चों को पता होता है कि ये कोएफिशिएंट आपस में कोप्राइम होने चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए। सो नॉट दिस, ओके। लीनियर इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट आपस में कोप्राइम होगा तभी आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा। डेसिमल्स में तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशन तब मिलेगा जब दोनों आपस में कोप्राइम हो। ओके, now next question guys, question number 34. This is also again a very important question, exactly the type of question that we have just discussed. So let's quickly finish it for your practice. A paper containing 100 questions. अभी आपके पास 100 questions हैं, right? Correct answer के 4 marks, wrong answer का 2 marks, unattempted questions will give 1 negative mark. तो वही है, right? So आपका correct questions plus wrong questions plus unattempted questions 100 के equal आएगा। और 4 times of correct answer minus 2 times of wrong answer minus unattempted question will give you total, right? ये आना चाहिए, total marks जो आने चाहिए वो 93 आने चाहिए, right? So सबसे पहला स्टेप तो यही है, दोनों को कैंसिल करो, you get 5 times of C minus W is equal to 190, right? Okay. Now I'm supposed to find out which of the following could be the possible number of answers. So इसके बहुत सारे integral solutions हैं, right? But आपको कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर 100 से ऊपर नहीं जा सकते, right? So just find out the integral solution in this case. Increasing line है, देख के पता लग रहा है ax minus by is equal to c की फॉर्मेट का। So what should I put the value of c here? c का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे? आप देखो बच्चों, पहला पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा if I put w as 2, because इस नंबर को मेरे को 2 का 5 का मल्टीपल करना है, तो w में अगर मैं 2 पुट करूं तो 195 बनेगा and c would be 5 into 3 15 39, right? 195 minus 2 1 would be 190, right? So first solution is that c की वैल्यू को अगर मैं, right, फर्स्ट सॉल्यूशन में आप c की वैल्यू को 39 लो और रॉन्ग आंसर को w लो, right? In that case you'll get 193, ठीक है? Now next you see that जो change in x और change in y जो आएगा इसमें, change in y upon change in x, ठीक है? change in y that means जो change आप change in w कर लो या change in correct answer कर लो, so वो w के अंदर जो change आएगा वो c के ऊपर डिपेंडेंट करेगा 5 पे, change in c जो आएगा वो w के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, वो आएगा। so अगर मैं इसको 5 से फर्दर W को अगर मैं 1 से इंक्रीज करता हूँ, लेट्स से कि मैंने इसको 3 W को सॉरी 5 से इंक्रीज करना है, अगर मैंने इसको 7 किया तो ये 1 से इंक्रीज होगा 40, 5 times of 40 minus 7 would also give you 193, तो ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। ओके, तो इस केस में आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी आप साथ में लिखो, 39 करेक्ट 2 रॉन्ग, तो बाकी जो बचा 41 और बचा 59, तो 59 अनअटेम्प्टेड, 47 टोटल, बाकी जो बचा 53, राइट? सो यू सी दैट कि ये 6 से कम होता जा रहा है, राइट? सो यू सी नेक्स्ट सॉल्यूशन अगर मेरे को निकालना है तो इट वुड बी 41, ये 2 से 5 7 5 इंक्रीज होगा तो आगे भी 5 इंक्रीज होगा, और ये 6 से कम हुआ, ये फर्दर 6 से कम हो जाएगा, दैट वुड बी 47 एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग, राइट? नाउ यू सी दैट हियर मेरे को ये बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस यूज करनी पड़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में स्टेटमेंट में वर्ड में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग could be the possible number of wrong answers, तो सिर्फ कौन से possible number of wrong answers हैं। इसी दैट कि 2 wrong आंसर हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 12 भी, तो आगे 17 भी हो सकते हैं, आगे जाके 22 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। एंड इफ यू लुक एट द टाइप ऑफ द रॉन्ग आंसर, ये सारी वैल्यूज कितने से बढ़ रही हैं? 5 से बढ़ रही है, 5 5 के गैप में।
So all these numbers, if you observe carefully, अगर आप इन numbers की types को linear equation में लिखना चाहो, then you can see that कि ये सारे जो numbers हैं ये 5k plus 2 की form के numbers. All these numbers when divided by 5 give you a remainder of 2. if 2 को 5 से डिवाइड करने पे 2 का रिमाइंडर, 7 को 5 से डिवाइड करने पे 2 का रिमाइंडर, आप किसी को भी चेक कर सकते हो. सो रॉन्ग आंसर्स वो सारे पॉसिबल हैं जो 5 से डिवाइड होने पे 2 का रिमाइंडर दें. सो 5 से डिवाइड होने पे 2 का रिमाइंडर यहाँ से भी आ रहा है, ये नहीं है तो ये आउट ऑफ ये एलिमिनेट हो जाएगा. 47 भी 2 का रिमाइंडर देता है, 62 भी 2 का रिमाइंडर देता है. तो क्या तीनों पॉसिबल आंसर्स हैं? नहीं. क्यों? बिकॉज आई नीड टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन की करेक्ट और रॉन्ग आंसर मेरे 100 से नीचे होना चाहिए इनका टोटल. तो व्हाट डू वी नीड टू डू इज कि फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल रॉन्ग आंसर. मैक्सिमम पॉसिबल रॉन्ग आंसर आपको देखना है कि कितने हो सकते हैं. उसके लिए क्या करो, यू सी दैट हियर जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है ये 6 से कम हो रहा है. दिस इज गेटिंग डिक्रीज बाय 6. सो इसका अगर मेरे को टाइप देखना है तो ये नंबर्स वो हैं जो 6 से डिवाइड होके 5 का रिमाइंडर दे रहे हैं. लुक एट इट. 59 को 6 से डिवाइड करो 5 का रिमाइंडर, 53 को 6 से डिवाइड करो 5, इसको भी 6 से डिवाइड करो, राइट, 5 का रिमाइंडर. सो ऑल दीज नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6k plus 5. ये सारे नंबर 6k plus 5 के. तो आखिरी जो नंबर होगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन भी नो कि नेगेटिव में नहीं जा सकते. हमेशा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इसमें जो सीरीज होगी आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी, उसी से आपको पूरे सेट का क्वेश्चन का आइडिया लगेगा. सो जो लास्ट वैल्यू जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की हो सकती है और जो 6k plus 5 की होगी वो होगी 5. दैट मींस कि आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस 5 होंगे. तो करेक्ट क्वेश्चंस प्लस रॉन्ग आंसर्स कितने होंगे? टोटल 100 है. अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस 5, तो करेक्ट प्लस रॉन्ग जो होंगे वो 95 होंगे. और एंड आई आल्सो नो दैट कि 5c माइनस w जो आना चाहिए वो 193 आना चाहिए. सो इसमें अगर आप सॉल्व करो तो ये आपका कैंसिल, you get 6 times of c is equal to 5 plus 3 8, 9 plus 9 8, 288. So correct questions जो आएंगे 6 into 4 48 आपके. So correct questions 48, unattempted questions 5. तो wrong question जो आएंगे that would be 48 plus 5 53, 53 को माइनस कर दो 100 में से, so that would be 47. तो ये आपका लास्ट केस है और इस लास्ट केस में रॉन्ग आंसर्स आपके 47 आ रहे हैं और करेक्ट आंसर्स आपके आ रहे हैं 48. दैट्स द लास्ट केस. इसके बाद अगर जा रहा हूं तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस नेगेटिव हो जाएंगे. सो दैट कैन नॉट बी वर्क, राइट. सो लेट मी राइट डाउन ओवर हियर. सो इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन सी दैट दिस इज माय लास्ट केस जिसमें करेक्ट आंसर्स मेरे 48 हैं, रॉन्ग आंसर मेरे 47 हैं और आपके अनअटेम्प्टेड जो है वो 5 है. 47 अभी ये 5 से नीचे नहीं जा सकता. दैट मींस ये 47 से और ऊपर नहीं जा पाएगा. Highest number of wrong answer possible are 47. Highest number of correct answer possible are 48. So 47 तक वो सारे नंबर्स जो 5k plus 2 की फॉर्म के नंबर्स हैं, those are the applicable numbers. बाकी कोई भी नंबर एप्लीकेबल नहीं होगा. So 47 is the highest number of wrong answer. 47 highest है तो इसका मतलब 52 और 62 एलिमिनेट हो जाएंगे. बिकॉज अगर मैं 52 या 62 लूंगा इन दैट केस मेरे करेक्ट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स का जो टोटल वैल्यू होगा वो 100 से अप हो जाएगा. बट पेपर टोटल 100 क्वेश्चंस का है तो इसमें आप 100 से ऊपर की वैल्यू नहीं ले सकते, राइट. सो दैट्स व्हाई आंसर वुड बी सी, दैट इज 47. थैंक यू सो मच गाइस. दीस वर वन ऑफ द बेस्ट selected questions, right? For linear equations I will also be recording videos of linear equation of 3 variables. So उसमें हम कुछ और 3-4 क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट जिसमें आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए and CAT relevant questions आपके कवर हो जाए. Thank you so much for watching the video. Please subscribe to the channel, share it with all the friends who are preparing for CAT and other MBA entrance exam. Thank you.